बायोक्वेस्ट एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिकॉम्बिनेशन। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन है क्या। इफ यू लुक at the word recombination, it basically means it is made up of two different words, re and combine, or you can say combination. So basically means we are mixing things together. In this case, we will be taking DNAs. For example, let's take this as a DNA, and now let's take another segment of DNA. So these are two DNAs. So basically, recombination means we are going to mix these up. So that's basically it. So we can say it is mixing up of DNAs. So it is quite basic actually. Imagine that we take a segment of these, for example, imagine from here this part to this part, and then we change it. So the result will be something like this. We will have a segment of the old DNA like this, and then we will have a new segment which will be present in the this DNA. So let's say this is DNA 1 and this is DNA 2. So basically it means that we are taking the segment of one DNA and we are mixing it up with another DNA. It is also there is a result on this side. The DNA 2 will become shorter. Okay, not like this, something like this. So it will become shorter because it has just lost a segment of its DNA. So this is what basically recombination means. It means that we are going to recombine the DNAs. Actually, first of all, the DNA produced in this manner, for example, this will be referred as a recombinant DNA. So basically, actually, all of the DNA that is present around in the world, it is all recombinant DNA. Genetic exchange. So basically, you can say the recombination, we can simply say this is a genetic exchange. Genetic exchange means there is a simply the genetic material, which is usually the DNA. In the case of you can say the cellular organisms, is going to be exchanged. There are two DNA molecules, as you can see right here, and then there is you can say the exchange of the genetic material from DNA 2 to DNA 1. It is also possible that DNA 2 can also get a segment. For example, this can also go this like this. Just give me a second. Let me show you how it can also work. It can also work like this. So a segment of the green, you can say DNA2 molecule has been transferred to this part, and the segment of you can say this DNA has been transferred to this part. So this is basically a genetic exchange. So recombination, there are different types of recombination. First of all, let's discuss the different types. So here we have recombination, and I will be making videos on each and every type. So first of all, let's see what are the different type of recombination. The most common of the recombination is what we call a homologous recombination. It is the most common type. It is usually seen in two basic scenarios. First of all, the function of the homologous recombination, it is seen as I told you, it is seen in two scenarios. First of all, it is seen in the, you can say, double stranded break repair. So I will write DSB repair. इट मीन हमने पिछली वीडियो में अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने अलग अलग तरह के डीएनए डैमेजेस की बात की थी, तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए, ये आपके पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, आपके पास दो स्ट्रैंड हैं, और अगर किसी कारणवश अगर इसके दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक आ जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज अ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, और इन शॉर्ट वी कैन राइट जस्ट डीएसबी। सो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को रिपेयर करने में। दूसरा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगी जहां पे मियोसिस होती है। हालांकि माइटोसिस के अंदर भी थोड़े बहुत केसेस देखने को मिलते हैं, वी कॉल दैट माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मियोटिक रिकॉम्बिनेशन। सो ये है आपके पास होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। आज की वीडियो पे हम जो है अपना फोकस रखने वाले हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पे। इसके साथ साथ हमारे पास और भी हैं, जैसे कि आपने ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजोन्स के बारे में सुना होगा। बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जंपिंग जीन्स। सो ये भी एक तरह की रिकॉम्बिनेशन है। उसके साथ साथ हम करेंगे आपकी जो मेटिंग टाइप स्विचिंग होती है, वो भी एक तरह की यू कैन से रिकॉम्बिनेशन है।
So as you can see, there are different kind of recombination, there are different mechanisms of recombination, and we will discuss that. But in this video we will be focusing on the homologous recombination. So let's start with the homologous recombination. The homologous recombination, first of all, let's discuss the model for the homologous recombination. As you can see, homologous. So first of all, we need to address this term. What does homologous means? And we have already discussed what is the meaning of homologous recombination. तो homologous, आपने सुना होगा कि हम जो है, let's take an example of humans. Humans जो हैं, हमारे पास 23 pairs of chromosomes हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपके पास 22 pairs जो हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स. So these are autosomes. और जो आपका एक पेयर, लास्ट पेयर है, वो होता है आपका यू कैन से वन पेयर, दैट इज व्हाट वी कॉल द सेक्स क्रोमोसोम्स. सो दैट इज बेसिकली इट. आपके पास ऑटोसोम्स हैं और सेक्स क्रोमोसोम है. ये जो 23 पेयर हैं, इनमें से आपके पास, हमारे पास, हम डिप्लॉयड हैं, हमारे पास यू कैन से 2 सेट हैं, राइट. एक सेट हमें मिलता है यू कैन से फ्रॉम द फादर एंड एक मिलता है फ्रॉम द मदर. सो this is you can say one set is from the mother and other set is from the father. तो आपके पास यहाँ पे ऐसे 2 सेट होते हैं. So it is quite simple actually. For example, let's take chromosome 1. So chromosome 1, for example, this is the chromosome 1, okay, and this is the chromosome 2. So this is you can say this is the maternal chromosome, the chromosome that we have got from the mother, and this is a paternal one, means this is the one that we have received from the father. So imagine there has been a double-stranded break in this one, in the paternal chromosome. If we do not do anything about this double-stranded break, अगर हम इस double-stranded break को यूं का यूं छोड़ देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या होगी, हमारा जेनेटिक लॉस होगा, हमारा जो डीएनए है वो हम खो चुके होंगे, एंड दैट कैन बी डिजास्टरस फॉर द सेल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि हमारे पास इसका एक जोड़ा जिसकी सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर व्हाट वी कॉल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर जो आपके जीन्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं. इनकी हालांकि सीक्वेंसेस थोड़ी बहुत डिफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग एलील्स देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्रोमोसोम की, जो आपका मेटरनल क्रोमोसोम है, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं टू यू कैन से टू रिपेयर द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जो आपके पैटर्नल क्रोमोसोम में देखने को मिले. सो ये है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को हम पढ़ने के लिए हम एक मॉडल का यूज करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपकी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वो होती है. इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द अलाइनमेंट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा भी, आपके पास 2 क्रोमोसोम हैं, तो उन दोनों की सबसे पहले एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट होगी. जैसे आपको याद हो तो मियोसिस के दौरान होती भी है, और अगर मियोसिस नहीं है और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ गए हैं, तो उस सिनेरियो में भी हम जो है अलाइनमेंट जो है सबसे पहला स्टेप होगा. जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे. उसके बाद एक और चीज जो कि सबसे मैं कहूँगा कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है आपके रिकॉम्बिनेशन के लिए, ये किसी भी तरह की आप रिकॉम्बिनेशन में देख लीजिएगा, आपके पास चाहे मेटिंग टाइप स्विचिंग हो या फिर आपके पास ट्रांसपोजिशन हो, वहां पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं द DSBs. तो ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मियोसिस के केस में इन्हें इंड्यूस किया जाता है, मतलब कि हम खुद लगा लीजिए आपके पास मियोसिस है, तो मियोसिस के अंदर जब रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स हैं उनको इंड्यूस किया जाता है बाय स्पेशल एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल देयर इज एन एंजाइम नेम्ड SPO11 जो कि आपके डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स लगाता है ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके. हालांकि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर में आपको डबल स्ट्रैंडेड जो ब्रेक्स हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कारणवश, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एक्सपोजर टू यू कैन से हाई पेनिट्रेंस रेडिएशन लाइक एक्सरे, मान लीजिए कि आप एक्सरे के सामने आ गए हैं और आपके एक्सरे जो है वो आपके डीएनए में क्या करेंगी, वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक अपने आप इंड्यूस कर देंगे. तो इस केस में आपको डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इंड्यूस नहीं करने पड़ेंगे, मतलब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है.
लेकिन जो दूसरा स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स का होना। वो अपने आप भी हो सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस लाइक एक्सरेज, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, या फिर जैसे मियोसिस में होता है उनको हम इंड्यूस भी करते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन। ये जैसे ही हम अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन के बाद एक अलग चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं द हॉलीडे जंक्शन। हॉलीडे जंक्शन के बाद आपका हमें जो हॉलीडे जंक्शन है उसको रिजोल्व करना पड़ता है। सो हॉलीडे जंक्शन, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, देयर इज अ ब्रांच माइग्रेशन एज वेल। सो हमें यहाँ पे रिजोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन भी मेंशन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो ये है हमारे पास पांचवा स्टेप जिसको हम बोलते हैं द ब्रांच माइग्रेशन। उसके बाद आखिरी स्टेप है रिजोल्यूशन। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसको समझने के लिए आइए एक डायग्राम के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी जो रिकॉम्बिनेशन है वो बेसिकली होती है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स मूव दिस डायग्राम अ लिटिल बिट। यस, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पहला पार्ट। यहाँ पे आपके पहले दो स्टेप्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला स्टेप आपका क्या था? अलाइनमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो अलाइन कर चुके हैं। ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये उसका होमोलोगस पेयर है, मींस इनमें से एक पैटर्नल है दूसरा मैटरनल है। तो ये इनके अलाइनमेंट हो चुकी है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। सो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे हैं। तो आपके पहले दोनों स्टेप्स जो हैं हो चुके हैं। इसके बाद एक्चुअली में हमें आगे बढ़ने से पहले थोड़े यहाँ पे एंजाइम्स आते हैं, कुछ अलग अलग एंजाइम्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन इज द रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। तो वो करते क्या है, यहाँ पे इन ब्रांचेस को थोड़ा सा कट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, हम ऊपर वाली ये जो आपकी ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको कट करेंगे और दूसरी को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि कौन सी ब्रांच को कट किया जा रहा है और कौन सी को छोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्राइम लिखा है, इसका मतलब ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा? 5 प्राइम। यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो 5 प्राइम वाली जो आपकी स्ट्रैंड है इसको तो ज्यादा डाइजेस्ट करेंगे और 3 प्राइम वाली को कम करेंगे। सो एज यू कैन सी जो आपके 5 प्राइम एंड है उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया है और जो 3 प्राइम है वो नहीं किया गया है। इस कंडीशन को बोलते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, इनको लिखते हैं हम 3 प्राइम ओवरहैंग। ठीक है, तो जैसा कि नाम में लिखा है ओवरहैंग मतलब कि एक्स्ट्रा लटक रहा है। दैट इज यू कैन से जो सिंपल ट्रांसलेशन है इसकी वही है, क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं जो आपकी 3 प्राइम स्ट्रैंड है वो थोड़ी सी आपके पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ओके, सो ये था आपका यू कैन से बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, आपका फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइम ओवरहैंग। इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं यू कैन से स्ट्रैंड इन्वेजन। जैसा कि नाम में लिखा है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है स्ट्रैंड इन्वेजन। इसका मतलब जो ये वाली स्ट्रैंड है आपकी जिसमें 3 प्राइम ओवरहैंग है, जो ये स्ट्रैंड है आपकी, ये इस डीएनए के अंदर इन्वेड करेगी, मतलब इसके अंदर घुसेगी। ठीक है, जब ऐसा होता है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, हालांकि ये जो आपका इन्वेजन होता है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रांच माइग्रेशन के दौरान आपकी जो ये स्ट्रैंड है ये आप देख सकते हैं ये दूसरे जो आपका डीएनए है उसके अंदर घुस चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे अब आपके पास 3 स्ट्रैंड्स जो है वो मौजूद है। ओके, सो बेसिकली दिस इज यू कैन से द पार्ट ऑफ स्ट्रैंड इन्वेजन। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल है, लेट्स कॉल दिस डीएनए 1, यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, ये है आपका डीएनए 1 और ये है आपका डीएनए 2। सो यहाँ पे आपके जो दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं डीएनए 1 और डीएनए 2, ये एक दूसरे से लिंक्ड हो चुके हैं। तो इस कंडीशन को, जिसमें आप ये एक्स भी बनता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप आई होप कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स बना हुआ है कुछ इस तरीके से, इस कंडीशन को बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन। तो हॉलीडे जंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब जहां पे दो आपके डीएनए एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों ड्यू टू स्ट्रैंड इन्वेजन, उस कंडीशन को बोलते हैं हम
हॉलीडे जंक्शन। ओके, हॉलीडे जंक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आ रहा है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन। इसका मतलब ये जो आपकी ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका 3 प्राइम ओवर हैंग आपको दिख रहा था, ये पहले यहीं तक था, अब ये आगे जो है कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये आगे क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रांच माइग्रेशन। तो आपके जो बाकी के स्टेप हैं वो भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट देम डाउन। यहाँ पे हमारा जो है जो तीसरा, आई थिंक तीसरा ही है ये, जिस लेट्स बी श्योर, यस, जो आपका तीसरा स्टेप है वो हो चुका है। राइट हियर वी हैव द स्ट्रैंड इन्वेजन। इसके बाद ब्रांच माइग्रेशन जो कि चौथा स्टेप है वो लास्ट है। इसके बाद होगा क्या, एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बचा हुआ जो डीएनए था उसको नहीं दिखाया गया है, जो ये वाला जो आपका सेगमेंट है इसको नहीं दिखाया गया है। ओके, अब होगा क्या कि ये वापस जब आपकी रिकॉम्बिनेशन, जब ये पूरे यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी कर चुका होगा, ये इसको कॉपी करने के बाद वापस जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इस कंडीशन को, अब इसके बाद आपके पास 2 हॉलीडे जंक्शन बचेंगे। लेट्स सी कि वो कैसे यू कैन से कैसे देखने को देखने दिखाई देते हैं हमें। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट अ सेकेंड, इसको भी हम यही रखते हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो बात है हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, यहाँ से कहानी अब यहाँ आ चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिकम्बिनेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ब्रांचेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ गई हैं। हमारे पास यहाँ पे एक हॉलीडे जंक्शन है। हॉलीडे जंक्शन को अब जो है, अगर हमें इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड जो दोनों हैं वो अभी भी लिंक्ड हैं, हमें इन दोनों को अलग करना है। इस सिनेरियो के अंदर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दैट इज हॉलीडे जंक्शन रिजोल्यूशन। इस केस में होता क्या है कि यहाँ पे अगेन एक एंजाइम आता है जिसको RUVC बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो करता क्या है, वो बेसिकली इसको रिजोल्व करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटेशन हुई है, राइट। कुछ इस तरीके से हॉलीडे जंक्शन को हमने घुमा दिया है, तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। अब जो आपका रेजोल्यूशन है, जो लास्ट स्टेप है आपका, जिसमें हमें इसको, जो आपका हॉलीडे जंक्शन है, इसमें होता नहीं, कुछ नहीं है, हमें रिजोल्व करना है हॉलीडे जंक्शन को। तो ये हमारा बेसिकली ये स्टेप है यहाँ पे, जो हॉलीडे जंक्शन है उसको रिजोल्व करना है। इसके 2 तरीके हमारे पास जो है प्रेजेंट है। कौन से, इसमें आपको बेसिकली कट लगाना होता है। कट आप या तो ऐसे लगा सकते हैं, और एक्चुअली दिख ही रहा है लास्ट स्टेप में, जस्ट अ सेकंड, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख भी सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कट को ऐसे लगा सकते हैं या फिर आप कट को ऐसे लगा सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। कैसे, देखिए समझिए इस चीज को। जब आप ये वाला जो कट लगेगा, जब आपको वर्टिकल आप इसको कह सकते हैं, तो ये वाला जो सारा डीएनए वो एक साथ जाएगा और ये वाला सारा डीएनए एक साथ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं क्रॉसओवर्स, और यू कैन से क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। इनके लिए हम दूसरा नाम भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइस्ड। दूसरा, अगर आप ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला जो सारा डीएनए वो एक साथ जाएगा और ये वाला सारा डीएनए एक साथ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं हम नॉन क्रॉसओवर। सो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स को हम पैच प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, या पैचेस भी बोलते हैं। तो आपकी इस तरीके से होती है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप जो है रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से कर रहे हैं, आपको अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये था बेसिकली आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के यू कैन से स्टेप्स थे जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब आइए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो जो ये जो स्टेप्स थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सबसे पहला स्टेप तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे पास जो पहला स्टेप था अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो यू कैन से काफी जरूरी है। ठीक है, यूजुअली आपके पास जब 2 कॉपी होती हैं क्रोमोसोम्स की, तो वो एक दूसरे की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ यू कैन से अलाइन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, ये नेचुरल भी हो सकते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ
यू कैन से एजेंट, या फिर ये आपके किसी एंजाइम के द्वारा भी किए जा सकते हैं। ओके, इसको हम यू कैन से जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया, आपके पास जब सिनेरियो था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर का, उस सिनेरियो के अंदर ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हैं, इनको कोई एजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एजेंट जो है वो रेडिएशंस हो सकती हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो ऐसी हरकत जो है कर सकते हैं, जो कि आपके डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को इंड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं आपके पास। मियोसिस के केस में हमारे पास ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स का इंट्रोडक्शन है, ये करवाते हैं आपके एंजाइम्स। उनमें से एक एंजाइम का नाम मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल SPO11। तो वो करता क्या है, बेसिकली आपके डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। जो नेक्स्ट स्टेप था उसके बाद, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स के बाद हमने एक चीज देखी थी, थोड़ा सा वापस चलते हैं, आइए एक बार। जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, हमने 5 प्राइम एंड को डाइजेस्ट कर दिया, 3 प्राइम एंड को नहीं किया। तो ये प्रोसेस, उसके बाद जो स्ट्रैंड इन्वेजन थी, मतलब कि प्रोसेस नंबर 3, और ये जो आप कह सकते हैं 2.5 वाली जो प्रोसेस है आपकी यहाँ पे बीच में, इस प्रोसेस में 3 में, और उसके बाद यू कैन से रेजोल्यूशन में, जो कि आपका आखिरी स्टेप है, इनके अंदर अलग अलग जो है आपके एंजाइम्स हम यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक, यू कैन से लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम का यूज करूंगा, नहीं तो ऑब्वियसली पूरा जो समय है यहाँ पे वो डायग्राम को बनाने में ही चला जाएगा। आइए इसको बड़ा करते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सिनेरियो है। सबसे पहले आपके जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स हैं वो लग चुके हैं, या तो यू कैन से या तो किसी एजेंट के द्वारा या फिर किसी एंजाइम के द्वारा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आपके पास अवेलेबल हैं, अलाइनमेंट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, हमें डाइजेस्ट करना है। किसको? डाइजेस्ट द 5 प्राइम स्ट्रैंड, जो आपकी 5 प्राइम स्ट्रैंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पे 3 प्राइम है, तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम है। तो हमें इस वाली स्ट्रैंड को ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट करना है और 3 प्राइम एंड को कम डाइजेस्ट करना है, ताकि हमारे पास क्या अवेलेबल हो, 3 प्राइम ओवरहैंग। तो डाइजेस्ट करेंगे हम 5 प्राइम स्ट्रैंड को, और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास 3 प्राइम ओवरहैंग अवेलेबल होगी, जो कि आपकी क्या होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब आपको पता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, राइट? हमें इसको प्रोटेक्ट करना होता है। इट इज नॉट अनस्टेबल ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सेल के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कोई ब्रेक आ जाता है तो आपका क्रोमोसोम पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमेशा किसी न किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता था, वहां पे बेसिकली आपका एक एंजाइम होता था जो कि इसको कवर करता था, जिसको हम बोलते थे SSBPs या SSBs, मींस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बट यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन है वो अलग है, जिसको बोलते हैं रैक ए। इस पे भी हम वापस आएंगे कि रैक ए क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि 3 प्राइम ओवरहैंग, जो ये हमारा हमने देखा था कि 3 प्राइम ओवरहैंग कुछ इस तरीके की सिनेरियो हमारे पास थी। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है आपका, ये 5 प्राइम। तो ये जो आपका 3 प्राइम ओवरहैंग है, ये एक्चुअली में बनता कैसे है? तो यहाँ पे जो आपका मेन रोल प्ले करता है उसको हम बोलते हैं रैक BCD कॉम्प्लेक्स। सो रैक BCD कॉम्प्लेक्स एक्चुअली 3 अलग अलग एंजाइम्स, रैक बी, रैक सी और रैक टी, इन 3 एंजाइम से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है आपका ऑब्वियसली क्या है, रैक BCD कॉम्प्लेक्स। तो रैक BCD कॉम्प्लेक्स सबसे पहले क्या करेगा, इट बाइंड्स ऑन द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, बाइंड्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, रैक BCD में जो आपके रैक बी हैं, लेट्स राइट देम डाउन, रैक बी और रैक डी, इन दोनों के पास हेलिकेज एक्टिविटी है। इन दोनों के पास क्या है, आपकी हेलिकेज एक्टिविटी। आई होप कि आपको याद होगा कि हेलिकेज का फंक्शन क्या था। हेलिकेज का फंक्शन था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अलग अलग करना इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो यहाँ पे आपके पास जो रैक बी और रैक डी हैं, इन दोनों के पास हेलिकेज एक्टिविटी है। आई होप कि आप गेस कर सकते हैं कि रैक बी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी और रैक डी की डायरेक्शन क्या होगी।
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रैक बी है इसकी डायरेक्शन हमारी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो रैक डी है इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्योंकि ऑब्वियसली दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो आपकी स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए के हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रैंड हैं, हमें पता है कि ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों एंजाइम्स को सेम डायरेक्शन में जाना है तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी। रैक बी की आपके पास है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और रैक डी की है आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसी के साथ साथ इनमें जो आपका रैक डी है इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी है। न्यूक्लियस एक्टिविटी का सिंपल मतलब यहां पे ये है कि ये डीएनए के ऊपर कट लगा सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपका रैक बी है इसके पास कोई न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, इसके पास कोई न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। इसका कारण है, हम देखते हैं, रैक सी जो है, हमने एक को छोड़ दिया, यहां पे लिखते हैं, आइए रैक सी। सो रैक सी बेसिकली क्या फंक्शन करता है, इसका काम यहाँ पे काफी सिंपल है। इसका काम ये क्या है कि इसको कंट्रोल करना किसको, रैक बी एंड डी। तो रैक बी और डी को कंट्रोल करने का काम आपका कौन करता है, रैक सी। तो आइए इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स के ऊपर यहाँ पे आपका रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स जो है वो लोड हो चुका है। एटीपी का यूज करते हुए, क्योंकि दोनों आपका रैक डी और रैक बी दोनों हेलिकेजेस हैं, ये एटीपी का यूज करेंगे और अपनी हेलिकेज एक्टिविटी शो करेंगे। इसका मतलब ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए है, हम इसको अब खोलकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अब मौजूद है। यहाँ पे कंडीशन एक है कि देखिए जो आपका रैक डी है ये फास्ट चलता है, रैक बी जो है वो स्लो चलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो रैक बी है वो स्लो चल रहा है, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से लूप्स बन जाएंगे। तो ये क्या बन रहे हैं आपके, यहाँ पे लूप्स फॉर्मेशन हो रही है डीएनए की, ठीक है। ये लूप्स आपके पास बनेंगे। इसी के साथ साथ रैक बी, हमें पता है कि रैक बी के पास खुद की कोई न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ये रिलाई करता है, ये यू कैन से डिपेंडेंट है रैक सी के ऊपर। रैक सी के ऊपर एक यू कैन से इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और ये डीएनए के ऊपर कट लगाता है। लेकिन हमें पता है कि ये फास्ट है हमारा भाई, जो आपका रैक डी है, तो ये फटाफट डीएनए को कट करता चलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है आपका जो 5 प्राइम वाली जो स्ट्रैंड है, मतलब जो आपके यहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड जल्दी डाइजेस्ट की जाएगी एज कंपेयर टू जो आपकी ये वाली स्ट्रैंड है, जिसको हम 3 प्राइम स्ट्रैंड बोलेंगे, ये वाली कम डाइजेस्ट की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे इसी के साथ साथ जो रैक यू कैन से बी और डी हैं, ये फंक्शन एज कर रहे हैं एज मोटर। मतलब कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है, इसको आगे चलाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, आपके रैक बी और रैक डी। और हर आगे चलने के लिए ये एटीपी का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं द ची साइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रीक लेटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको बोलते हैं हम द ची साइट। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक इन एरोज को मिटा देते हैं, इट इज सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो। तो ची साइट जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एज अ मोलिकुलर थ्रोटल या फिर मोलिकुलर एक्सेलरेटर। तो जैसा कि आपको पता है, गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर का, या फिर हमारे इंडियन ऑडियंसेस के लिए मैं बताना चाहूंगा, जिसको हम मोर कॉमनली रेस पेडल बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि आपकी कार की स्पीड को कंट्रोल करना। उसी तरीके से ची साइट का फंक्शन भी काफी यू कैन से सिंपल है। इसका फंक्शन बेसिकली क्या है कि आपका जो ये रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपके पास यहाँ पे रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले जब तक ची साइट नहीं आई, और ची साइट के बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो ची साइट्स हैं, ची साइट्स जो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही होती है, ठीक है। एक्चुअली अगर आपके पास, इमेजिन कीजिए आपके डीएनए के अंदर ची साइट अवेलेबल है, तो ये जो है रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को 10 गुना तक बढ़ा देती है। सो हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। आइए ची साइट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है द ची साइट। जो ची साइट है ये इंक्रीज करती है किसको, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर आपके डीएनए के अंदर ची साइट प्रेजेंट है तो आपके रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं।
तो इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कितना इंक्रीज करती है? रिकॉम्बी, okay, there has been some spelling mistakes, let's correct these. So हमारी जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की उसको हम 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं अगर हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो ची साइट्स। ठीक है, ची साइट्स जो है वो लगभग 10 केबी डिस्टेंस तक एक्टिव रहती है, मतलब कि ये 10 केबी दूर तक अपना इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। ची साइट्स का दूसरा काम जो है क्या होता है कि इमेजिन कीजिए आपके पास ची साइट नहीं है। ओके, मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है। ओके, यहाँ पे आपके डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आया है, यहाँ पे आपकी ची साइट प्रेजेंट है। एक दूसरा डीएनए भी हम लेते हैं जहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आया है लेकिन कोई ची साइट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों के ऊपर आपका रैक बीसीडी जो है वो लोड किया जाएगा। लेकिन रैक बीसीडी को यहाँ पे ये इस पूरे डीएनए को यहाँ तक जहाँ तक ची साइट आपकी प्रेजेंट है वहां तक ये पूरे डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। इसको पूरा डाइजेस्ट कर पूरा तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो ज्यादा कट की जाती है, दूसरी स्ट्रैंड इतनी ज्यादा कट नहीं की जाती। बट यहाँ पे जो सिनेरियो है, यहाँ पे कोई ची साइट नहीं है, तो ये रैक बीसीडी जो है ये पूरे के पूरे डीएनए को कट करता चलेगा। तो ची साइट बेसिकली एक काफी अच्छी चीज है। ये हेल्प करती है सेल को यू कैन से आइडेंटिफाई करने में कि ये डीएनए मेरा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो ची साइट्स हैं, ई कोलाई की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ई कोलाई के जीनोम में, ई कोलाई का जो आपका जीनोम है उसके अंदर ची साइट जो है वो 1009 बार मींस 1009 टाइम्स रिपीटेड होती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बार। सो इट इज जो ची साइट है वो कुछ उसके सीक्वेंस कुछ इस तरीके की होती है आपकी। ये आपकी सीक्वेंस है आपकी ची साइट की, ई कोलाई ची साइट। तो ये हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे उपलब्ध है और जैसा कि आप देख सकते हैं ई कोलाई के जीनोम में ये जो सीक्वेंस है ये 1009 बार प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं ओवर रिप्रेजेंटेड, मतलब कि जितनी होनी चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही। इसका काफी एक्चुअली एक फंक्शन है। अगर ई कोलाई में इमेजिन कीजिए कि ई कोलाई के अंदर कोई फॉरेन डीएनए या फिर वायरल डीएनए जो है वो एंट्री ले गया है, तो वायरल डीएनए के ऊपर ची साइट्स नहीं होती, तो रैक बीसीडी जो है वो वायरल डीएनए को कट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ई कोलाई बच जाएगा। लेकिन जब इसको फॉर एग्जांपल ये ई कोलाई के जीनोम में डीएसबी है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है, तो इस सिनेरियो में ई कोलाई की जो ची साइट्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे रिकॉम्बिनेशन करने में, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी फंक्शनिंग होती है ई कोलाई में ची साइट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ची साइट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ची साइट्स का बेसिकली फंक्शन हमारा होता है टू एक्ट एज अ मॉलिकुलर थ्रोटल और यू कैन से मॉलिकुलर एक्सेलरेटर। तो हमारी जो रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है हमारी, दैट इज गोइंग टू बी द ची साइट। ओके, उसके बाद आगे आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी ची साइट्स हैं वो इमेजिन कीजिए कि अब आपके पास ची साइट जो है वो एंट्री ले चुकी है आपके रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी अंदर जाने वाली है रैक बीसीडी में। तो जैसे ही ये अंदर जाती है ची साइट को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, यहाँ पे जो रैक सी है हमारा, इट विल रिकॉग्नाइज द ची साइट। इसके रिकॉग्निशन होते ही यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले क्या चेंजेस क्या आएंगे, लेट्स डिस्कस देम। यहीं पे लिख लेते हैं कि आपके 4 जो है मेजर चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये लूप बन रहा है ना 3 प्राइम एंड पे, ये जो लूप बन रहा है कुछ इस तरीके से, इसको रील बैक किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट चेंज दैट इज गोइंग टू बी इज रीलिंग बैक ऑफ लूप ऑन 3 प्राइम एंड। ये आपका पहला चेंज होगा। यहां पे लिख भी देते हैं चेंजेस बाय द ची साइट। उसके बाद दूसरा चेंज यहां पे क्या आएगा कि कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। किसके अंदर, रैक सी के अंदर। कन्फर्मेशन चेंज इन रैक सी, क्योंकि ऑब्वियसली रैक सी ही है जो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही ये चीज होती है जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और यू कैन से यहाँ पे हमारा जो रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है ये पॉज करेगा
कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसकी स्पीड हाफ हो जाएगी, स्पीड हाफ। तो आपकी स्पीड जो है वो आधी हो जाएगी, स्टार्टिंग में पॉज है, उसके बाद स्पीड जो है आधी हो जाएगी। इसके बाद और क्या होता है, जो रैक सी है हैज नो मोर न्यूक्लियस एक्टिविटी, नो मोर न्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब कि जो आपका रैक सी है अब वो 3 प्राइम जो स्ट्रैंड है आपके उसके ऊपर कट नहीं लगाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रैक सी कॉम्प्लेक्स का यू कैन से न्यूक्लियस डोमेन है जो कि कट लगा रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ची साइट एंटर करती है और तो आपका जो कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो आपका न्यूक्लियस डोमेन है वो हट जाता है और यहाँ पे अब कोई भी न्यूक्लियस एक्टिविटी इस चीज के ऊपर नहीं दिखाई जाएगी। पहले इसके ऊपर कट्स लग रहे थे, रैक सी लगा रहा था, रैक बी तो नहीं लगा रहा था, लेकिन जैसे ही ची साइट एंटर करती है 3 प्राइम एंड पे कट लगने बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो लूप है आपका, ये जो लूप बना हुआ है इसको हम जैसा कि मैंने बताया कि इसकी रीलिंग बैक होगी, मतलब इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रील बैक किया जाता है। इसके बाद अगली चीज क्या होती है कि इनकी स्पीड चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो रैक बी है जो कि पहले स्लो चल रहा था अब वो अंडर लोड आ जाता है। आप देख सकते हैं कि सारा हमने जो 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसको सारा रील बैक कर लिया है, मतलब कि खींच लिया है इस तरफ, ठीक है। ये पहले जैसे कि यहाँ पे था ना, इसको हम खींच के इधर ले आएंगे अब, तो इसको हमने रील बैक कर लिया है। जो रैक ये आपका डी है इसकी स्पीड अब स्लो हो चुकी है, ये पहले फास्ट चल रहा था लेकिन अब जो है इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ची साइट। इसके बाद 3 प्राइम एंड पे अब नो मोर कट्स, ओके, सो ये भी मेंशन करते हैं हम, नो मोर कट्स ऑन 3 प्राइम स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट कुछ काफी सिंपल है एक्चुअली। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास देखने को मिलेगा। इस तरीके का सिनेरियो बेसिकली मींस कि आपके पास जो 5 प्राइम एंड है वो आपका कट कर दिया जाएगा, 3 प्राइम और 3 प्राइम का है आपके पास क्या मिलेगा, इसको बोलेंगे हम 3 प्राइम ओवरहैंग। तो आपके पास अब 3 प्राइम का ओवरहैंग जो है वो अवेलेबल है। सो कुछ इस तरीके से ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब हुआ क्योंकि आपके पास प्रेजेंट था द रैक पीसीडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये तो ई कोलाई की बात करी मैंने, ई कोलाई के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल यूकैरियोट्स की, लेट्स डिस्कस यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर इसका यू कैन से यहाँ पे जो फंक्शन है उसको बोलते हैं द MRX प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम MRX कॉम्प्लेक्स या फिर MRX प्रोटीन आप बोल सकते हैं। ये जो है वही फंक्शन करता है जो आपका रैक बीसीडी ई कोलाई के अंदर करता है। अब आप कहेंगे कि सर हम MRX प्रोटीन को डिटेल में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए आपको मैकेनिज्म समझना है और मैकेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया का, यहाँ पे जो ई कोलाई है इसका मैकेनिज्म मच सिंपल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ई कोलाई का एग्जांपल जो है लेके चल रहे हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो है जो आपका MRX प्रोटीन है इसका दूसरा नाम भी है, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम रेड 50, 58 एंड 60 कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली इट मीन्स कि इसके अंदर जो रेड प्रोटीन है वो जो है यूज होते हैं। रेड प्रोटीन्स का काफी रोल होता है यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर। यू कैन से यूकैरियोट्स के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो प्रोटीन्स यूज होते हैं वो बेसिकली आपके रेड प्रोटीन यूज होते हैं। अलग अलग तरह के रेड प्रोटीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड 50, 58 और 60 हमने यूज कर लिए हैं। अब बात आती है कि आपका ये जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं इसका क्या रोल है, अब आगे क्या होगा। तो जैसा कि अगेन लेट्स टेक अ सिनेरियो। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो जो है पसंद प्रेजेंट। ये लाइन जो है आपकी कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सिनेरियो जो है आप देख सकते हैं हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पे ये आपका हो गया 3 प्राइम एंड, ये आपका हो गया 5 प्राइम एंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 प्राइम एंड और ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम एंड। यहाँ पे आपके जो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि क्या है आपके ये बेस पेयर्स हैं। हालांकि ये दिखाने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद देखिए अब जो आपका रैक बीसीडी था यहाँ पे फंक्शनिंग कौन कर रहा था आपका, दैट वाज
रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स ची साइट को भी हम रिप्रेजेंट जरूर करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हम बना देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ची साइट आई थी, ठीक है, ये आपके रेड कलर में आपके पास ये क्या है, दिस इज योर ची साइट। तो ची साइट आने के बाद आपका जो रैक बीसीडी कॉम्प्लेक्स है वो एक दूसरे प्रोटीन को रिक्रूट करेगा। तो यहाँ पे भर्ती किया जाएगा एक और नया प्रोटीन जिसको बोलते हैं रैक ए। अब रैक ए जो कि ई कोलाई का है, अगेन मैं मेंशन करना चाहूंगा ये आपका ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो अगेन यूकैरियोट्स के अंदर इसका जो है यू कैन से होमोलॉग है या वो होता है आपका, उसको बोलते हैं आई थिंक रैड 51। तो यहाँ पे आपके पास रैड 51 है। अच्छा, इसके साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं DCM1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, रैड 51 यूज किया जाता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स के रिपेयर में, ठीक है। DCM1 यूज किया जाता है मियोसिस में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यूकैरियोट्स के केस में आपके पास एक ही है क्योंकि ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स के केस में आपके पास एक ही है रैक ए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स जो है वो मियोसिस नहीं करते, वो डिप्लॉयड नहीं है, उनके पास एक ही यूजुअली डीएनए होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की आपके पास सिनेरियो आ चुका है। अब जो है हमारा एक नया जो प्लेयर है वो आ चुका है गेम में। अब समझते हैं कि रैक ए क्या है। देखिए, आपके पास हमने पढ़ा था कि ये सारा क्या है, ये है आपका द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास है इज ऑलवेज इन एसोसिएशन विद प्रोटीन्स। तो ये हमेशा यू कैन से किसी न किसी प्रोटीन के साथ आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब कैसे, अब देखिए, यूजुअली अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका जो प्रोटीन होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेशन है, यहाँ पे यूज होता है रैक ए। अब रैक ए जो है, रैक ए यू कैन से एक तरह का पॉलीमर बनाता है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। सो रैक ए जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे लगा लीजिए। ओके, ये कलर हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर जो कि हमारा थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये है आपका रैक ए। ओके, रैक ए स्टार्टिंग में जुड़ता है एज अ मोनोमर, ठीक है। और रैक ए फिर अपने यू कैन से आपने ये चीज पहले भी सुनी होगी कि पहले एक रैक ए जुड़ेगा, फिर वो दूसरे को इनवाइट करेगा, वो तीसरे को इनवाइट करेगा, वो चौथे को इनवाइट करेगा, ठीक है। ये इसके पीछे की साइड है, मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर वो उससे अगले को रिक्रूट करेगा, फिर वो रिक्रूट करेगा, फिर वो रिक्रूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है एक पॉलीमर की। उस पॉलीमर को हम कहते हैं द रैक ए फिलामेंट। कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं द रैक ए फिलामेंट। जो यहाँ पे रैक ए फिलामेंट है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो रैक प्रोटीन है ये डीएनए के साथ इंटरेक्शन करता है। कौन सा डीएनए? जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके साथ इंटरेक्शन की जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं रैक फिलामेंट जो है वो काफी लार्ज है। इट इज अ पॉलीमर, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे रैक ए मिलके रैक फिलामेंट जो है वो बनाते हैं। रैक ए जो है आमतौर पे एक फिलामेंट में यूजुअली लगभग 100 रैके होते हैं। मतलब एक फिलामेंट में लगभग 100 प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन मतलब कि एक रैक प्रोटीन 3 बेस न्यूक्लियोटाइड्स के साथ इंटरेक्शन करता है। तो 100 कितनों के साथ करेंगे? लगभग 300 के साथ। तो मैं यहाँ पे एनटीएस लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स में लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो रैक ए फिलामेंट है उसके अंदर बीच में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेलिकल टाइप का चला गया है, यहाँ पे डीएनए बिल्कुल आराम से फिट हो सकता है। डीएनए जो है जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे कोट हो चुका है, इसको हम बोलेंगे कोटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कवर करना आसान है। इसी के साथ साथ रैक ए जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर एक्चुअली लेट मी शो यू अ डायग्राम ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि आपका रैक ए जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो कर रहा है वो कैसे
एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या है आपका एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर बाइंडिंग करता है। अच्छा, इस बाइंडिंग को कहते हैं, मैं इसकी नाम बताना भूल गया, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मतलब कि खुद तो बाइंड करना ही करना है, अपने जो इसके जो साथी हैं, जो बाकी रह के है, उसको भी बाइंड करवाना है। ये चीज आपको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBs जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में थे वहां भी हमने देखी थी, और रैक ए भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके की जो है प्रोसेस शो करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रैक ए को रिक्रूट किसने किया था, जो आपका रैक BCD था, इसने रिक्रूट किया रैक ए को, तो रैक ए यहाँ पे एक जुड़ गया है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डायरेक्शन में जो है जो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपका 3' to 5' भी जा सकता है, मतलब कि इस तरफ भी ज्वाइनिंग करवा सकता है बाकियों की, और इस तरफ भी, मतलब 5' to 3'। तो ये दोनों डायरेक्शन में ज्वाइनिंग करवा सकता है, लेकिन 5' to 3' जो है वो एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल है, मतलब कि वो जो है आपकी ज्यादा जल्दी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है 3' to 5' वो यूजुअली स्लो होती है, जिसकी वजह से कोई फिलामेंट नहीं बन पाता, इसलिए फेवर किया जाता है 5' to 3' बाइंडिंग को, क्योंकि ये जो है कंपेरेटिवली आपकी क्या है, ये प्रोसेस फास्ट होती है, इसलिए फिलामेंट जो है रैक ए का फिलामेंट फटाफट जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको कोट कर देता है। ठीक है, उसके बाद अब जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारे पास आ चुकी है। जो रैक ए है, यहां पे लिखते हैं, जो रैक ए फिलामेंट है वो जुड़ चुका है किसके साथ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। अब ये होती है इसकी एक्टिव फॉर्म, ये क्या है हमारे पास एक्टिव फॉर्म, मतलब कि अब ये जो हमारा मित्र है रैक ए जो प्रोटीन है, ये अब फंक्शन करने के लिए तैयार है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, जो रैक ए फिलामेंट है, इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमें इस रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। जो रैक ए फिलामेंट है आपका, इसके अंदर इतनी जगह होती है कि ये मतलब कि दो स्ट्रैंड्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम दोबारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप, आई होप कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर इसको इधर रखते हैं हम ताकि इसको हम अच्छे से देख पाएं। एक्चुअली हमें इस पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये थोड़ा सा जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ फंक्शन करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैक ए फिलामेंट जो है आपके इसके अंदर 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। आपके पास यहाँ पे 2 अलग अलग बाइंडिंग साइट हैं। जो पहली बाइंडिंग साइट होती है वो होती है आपकी, जो आपका यू कैन से प्राइमरी बाइंडिंग साइट जिसको हम बोलेंगे। तो एक है आपके पास प्राइमरी बाइंडिंग साइट, दूसरी है आपके पास सेकेंडरी बाइंडिंग साइट। अब आप कहेंगे कि इनमें फर्क क्या है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। सबसे पहले जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपका 3' ओवरहैंग था, जिसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमने देखा था, राइट, वो जो है बाइंड करता है आपका प्राइमरी बाइंडिंग साइट पे। ये जो एसोसिएशन होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन जो है आपकी स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी बाइंडिंग साइट है, इसके ऊपर जो आपका टारगेट डीएनए है, जो आपका टारगेट डीएनए है, मतलब जिसके ऊपर हमें स्कैन करना है, वो बाइंड करता है। यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो वीक होती है। एसोसिएशन क्या है आपकी, वीक है और रैपिड है, मतलब कि फटाफट बाइंडिंग की जा सकती है और फटाफट लूज भी किया जाता है। ये जो बाइंडिंग है, ये आपकी जो प्राइमरी बाइंडिंग है, ये सीक्वेंस डिपेंडेंट है कुछ हद तक, ये आपकी सीक्वेंस डिपेंडेंट है। जो सेकेंडरी साइट पे बाइंडिंग होती है ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट है। अब देखिए रैक ए जो है वो बाइंडिंग कर रहा है, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो आपकी प्राइमरी बाइंडिंग साइट है इस पे आपका जो ओरिजिनल डीएनए है, मतलब कि जो 3' ओवरहैंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकेंडरी बाइंडिंग साइट पे दूसरा डीएनए जो है वो आता है, मतलब जो कि स्कैन करना है। इसके लिए हम दोबारा से एक और डायग्राम का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। सो लेट्स ब्रिंग इट राइट हियर ताकि आप लोग देख पाएं। इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे 2 डीएनए हैं, राइट। तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये आपके पास जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका 3' ओवरहैंग। तो 3' ओवरहैंग के ऊपर रैक ए फिलामेंट बन चुका है।
ये ऑब्वियसली हम यू कैन से आप जैसा कि देख सकते हैं। इसके बाद अब जो है यहाँ पे ये आपका टारगेट डीएनए है, या फिर आप कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि होमोलोगस है। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंड इन्वेजन है वो कौन करवाएगा? रैक ए। अब पॉइंट ये है कि स्ट्रैंड इन्वेजन मतलब कि इस स्ट्रैंड को, ये जो जहां पे आपका रैक ए जुड़ा हुआ है, ये इसको इसके अंदर घुसाएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो भी रहा है। तो इस प्रोसेस को स्ट्रैंड इन्वेजन बोलते हैं। ये होती कैसे है? एक्चुअली जो आपका रैक ए फिलामेंट है इसके अंदर काफी स्पेस होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज स्पेशियस। इट मींस इसके अंदर दो डीएनए स्ट्रैंड्स को फिट करने की जगह है, एक प्राइमरी बाइंडिंग साइट पे, दूसरी सेकेंडरी बाइंडिंग साइट पे। सेकेंडरी बाइंडिंग साइट की एसोसिएशन क्योंकि वीक है और रैपिड है, तो ये फटाफट स्कैन करता है, ठीक है। तो रैक ए की फिलामेंट देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जो रैक बी सी डी है उसने रिक्रूट किसको किया? रैक ए को। रैक ए ने क्या बनाया? रैक ए फिलामेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ मिलके अब ये क्या कर रहा है? स्कैनिंग। अब कहेंगे आप कि ये स्कैन किस चीज के लिए कर रहा है? अरे भैया, हमें डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, मान लीजिए एक, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि कैसे एक्चुअली में हम ये सिनेरियो लेके चलेंगे। तो मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, राइट, और ये एक दूसरा, हमें दूसरा भी लेना पड़ेगा, जो हमारा टारगेट डीएनए है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जो डीएनए है ये काफी बड़ा है, ठीक है। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमें इन्वेजन, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, रैक ए फिलामेंट, अब स्कैनिंग के बाद रैक ए क्या करवाएगा? स्ट्रैंड इन्वेजन। अब स्ट्रैंड इन्वेजन ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं भी करवा दिया जाए, क्योंकि हमें ये वाला जो एरिया है इसको कॉपी करना है, ये वाला जो हमने एरिया है इसको कॉपी करना है। तो इन्वेजन जो है वो उसी साइट पे होगा जब दोनों की सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस मैच होगी, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्कैनिंग, ठीक है। तो सीक्वेंस स्कैनिंग करवाने में जो रोल है आपका वो किसका है? रैक ए का है। जैसे ही स्कैनिंग हो जाएगी आपका स्ट्रैंड इन्वेजन जो है देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके पास होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका ग्रीन सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। जो आपका ऊपर वाली स्ट्रैंड है, जो येलो स्ट्रैंड है आपकी, वो अब यहाँ पे इन्वेजन कर रही है कुछ इस तरीके से। और ये इन्वेजन किसने करवाया है? ये करवाया है आपकी रैक ए ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कैनिंग होती है, जो रैक ए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये स्कैन करते हैं कि सीक्वेंस मैच हो जाए। जब सीक्वेंस मैच होगी, कितनी मैच होनी चाहिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई कभी कभी, कि सर मैच कितनी होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए मोर देन 15 बेस पेयर, मतलब 15 बेस पेयर से ज्यादा अगर मैच है तो हम स्ट्रैंड इन्वेजन कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि भाई कितनी भी थोड़ी बहुत भी मैच हो, नहीं नहीं, कम से कम 15 बेस पेयर जो है आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो है सिग्नल जाता है स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए। फिर रैक ए जो है वो करवाता है क्या? स्ट्रैंड इन्वेजन। और स्ट्रैंड इन्वेजन कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा आपको। अगेन इसके लिए हम एक डायग्राम का यूज करेंगे। माइंड यू दिस इज नॉट अ क्लियर डायग्राम, बट आई होप कि हम इसका इस्तेमाल करके समझ पाएं कि हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास प्रेजेंट है ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसके ऊपर रैक ए फिलामेंट जो है पर्पल कलर में आप देख रहे होंगे वो जुड़ा हुआ है। अब स्कैनिंग हुई और मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड इसकी ले ली गई है और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बाकी ये वाली जो है ये अकेली बच जाएगी। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इसकी स्ट्रैंड्स में कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा ना। ये जो कंडीशन बनी, ये जो कंडीशन बन रही है ना, इसको बोलते हैं हेट्रोडुप्लेक्स, ठीक है। ये क्या है आपका? हेट्रोडुप्लेक्स। हेट्रोडुप्लेक्स क्यों बोला हमने इसको? देखिए काफी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। हेट्रो का मतलब बेसिकली है कि डिफरेंट, ठीक है, और डुप्लेक्स मतलब कि दो है, मतलब कि यहाँ पे टू डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स, दो डिफरेंट, मतलब क्योंकि देखिए एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है, भले ही दोनों की सीक्वेंस सेम है लेकिन स्ट्रैंड तो अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला? हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए। और जो इसका साथी था यहाँ पे, जो हमारा ये वाला एक सेगमेंट था, ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैंड इन्वेजन होती है। स्ट्रैंड इन्वेजन एक्चुअली जो आपका रैक ए है वो
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस मतलब इसके बीच में ये जो है और इनमें से एक के बीच में, इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है रह के। और उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज बनती है ना, इसका एक और नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम जॉइंट मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट मॉलिक्यूल। तो ये जॉइंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर तीन चीजें हैं आपके पास। क्या क्या है वो? आपके पास है रैक ए का फिलामेंट, ओके, उसके साथ आपके पास जो ओरिजिनल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और टारगेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये है आपका जॉइंट मॉलिक्यूल, जिसको आप कैन से हेटेरोडुप्लेक्स भी बोलते हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है कि रैक ए का फंक्शन, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रैक ए कर क्या रहा है। रैक ए का बेसिकली काम क्या है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कवर करना, उसके बाद इन्वेजन कराना, दो इसके अंदर बाइंडिंग साइट हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो रैक ए है वो फंक्शन करता है। आई होप कि रैक ए का जो पॉइंट है आपका क्लियर होगा। अब देखिए रैक ए जो है स्ट्रैंड इन्वेजन हो चुका है, उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ब्रांच माइग्रेशन होगा। मतलब कि ब्रांच माइग्रेशन भी कुछ खास नहीं है, मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है आपकी, इसको जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये जो स्ट्रैंड है अब ये आगे बढ़ेगी और कॉपी करती जाएगी, ठीक है। जो ग्रीन स्ट्रैंड है आपकी वो हटती जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास कंडीशन देखने को मिलेगी। जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है वो भी क्या करेगी, इस ग्रीन स्ट्रैंड का यूज करके अपनी कॉपी बना लेगी, कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉलिडे जंक्शन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ था, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब कि यहां से लेके और यहाँ पे शुरुआत में डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आया था। अब हमने उस सेगमेंट की, ये जो आपका डीएनए का टुकड़ा जो गायब हुआ था, इसकी कॉपी हमने बना ली है। किसका यूज करके? इसकी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का यूज करके। जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध थी उसका यूज करके हमने ये वाली जो कॉपी है इसको फिल कर दिया। तो इस तरीके से आपके होते हैं डबल स्ट्रैंड रिपेयर्स। इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे ही आपका यहाँ पे ये पूरा होगा, जो आपकी येलो स्ट्रैंड है वो जाके यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपके पास अब क्या है, देखिए आप बेसिकली देख सकते हैं आपके पास आखिरी में क्या बचा, एक हॉलिडे जंक्शन यहाँ पे है और एक हॉलिडे जंक्शन यहाँ पे है। तो जब तक हम इन दोनों हॉलिडे जंक्शंस को रिजोल्व ना कर दें, हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो लास्ट प्रोसेस जो कि यहाँ पे आपकी है, और सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये डीएनए स्ट्रैंड ये आगे बढ़ेगी, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इस प्रोसेस को हमने बोला था द ब्रांच माइग्रेशन। ये ब्रांच माइग्रेशन भी ऐसे ही नहीं होती, इसके लिए भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं RUVAB कॉम्प्लेक्स। तो ब्रांच माइग्रेशन में ये रोल प्ले करते हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द RUVAB कॉम्प्लेक्स एंड ब्रांच माइग्रेशन। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी RUVAB है, कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ आपके पास ब्रांच माइग्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टू प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है। एक आपके पास है RUVA और दूसरा आपके पास प्रेजेंट है RUVB, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ही आपका हॉलिडे जंक्शन बना, क्योंकि देखिए स्टेप कहाँ थे, हमने स्ट्रैंड इन्वेजन कराया था, राइट। और जैसे ही स्ट्रैंड इन्वेजन होता है हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा हॉलिडे जंक्शन का बनना। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? हॉलिडे जंक्शन बन गया। हॉलिडे जंक्शन मतलब कि ये कुछ इस तरह का जो सिनेरियो था हमारे पास। हॉलिडे जंक्शन जैसे ही बनता है, हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। अब हमारे पास क्या है? रिकॉग्निशन किसका? हॉलिडे जंक्शन का। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हॉलिडे जंक्शन है इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इसको रिकॉग्नाइज करने का काम जो है हमारा एक यू कैन से प्रोटीन करता है, जो कि हमने मेंशन किया है, वो करेगा RUVA। जो यहाँ पे आपके पास दो प्रोटीन है उनमें से एक जो है RUVAB, ये क्या करेगा? ये डीएनए हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये करेगा क्या? रिक्रूट करेगा। खुद तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके साथ साथ
रिक्रूट करेगा किसको, RUVB को। अब ये दोनों जो हैं ये मिलके क्या बना देंगे, यहां से ये और यहां से ये बना देंगे आपका RUVAB कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का फंक्शन मैं पहले ही, जैसा कि आपको टाइटल में दिख भी रहा होगा, इसका फंक्शन है ब्रांच माइग्रेशन। तो ब्रांच माइग्रेशन, अब आइए देखते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसका अगेन मैं एक डायग्राम यूज करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये आपके पास जो है RUVAB कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरीके का। इसका थोड़ा सा इंलार्ज कर लेते हैं ताकि हम क्लियरली देख पाएं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रोटीन्स हैं, एक है हमारे पास RUVB और एक है आपके पास RUVA। दोनों का फंक्शन जो है अलग अलग है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं RUVB को। तो RUVB के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये हेक्सामर है। इसका मतलब इसके अंदर 6 अलग अलग सब यूनिट हैं। दूसरी बात, इसके पास जो है ये ATP का यूज कर ATPase है और ये ATP का यूज करके हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये 3 फीचर हैं आपके RUVB के। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके यू कैन से ब्रांच माइग्रेशन में मदद करते हैं, क्योंकि इनके पास हेलिकेज एक्टिविटी है और ATP का यूज करके ये जो है फंक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं RUVA, जो कि एक टेट्रामरिक प्रोटीन है। अब आइए RUVA के फीचर्स भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये सबसे पहली तो बात, ये क्या है, एक टेट्रामर है। दूसरी बात, ये फंक्शन करता है एज अ मोटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी ATP का यूज करेगा। ATP यूज करके ये मोटर का काम करता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाने का काम जो है वो आपके RUVA का है और हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है RUVB। तो ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के साथ चलते हैं और दोनों किस में हेल्प करते हैं, आपकी ब्रांच माइग्रेशन में। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब मान लीजिए कि ब्रांच माइग्रेशन भी हो गया। अब आखिरी चीज मैंने आपको बताया था जिसके बिना हमारी रिकॉम्बिनेशन जो है वो अधूरी रहेगी, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। मतलब कि जो आपका हॉलीडे जंक्शन बना था उसको रिजोल्व करना है। सो रिजोल्यूशन ऑफ द हॉलीडे जंक्शन, ये आपके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर भी ऑब्वियसली एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं RUVC। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है एक हॉलीडे जंक्शन। अब आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो ये हॉलीडे जंक्शन है, इसके ऊपर कट लगाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे RUVC को। तो रिजोल्यूशन देखिए होता कैसे है, जब आपका देखिए सबसे पहले आपके पास क्या था, हॉलीडे जंक्शन। जैसे ही हॉलीडे जंक्शन के साथ कौन जुड़ा था, हमारे पास यहाँ पे जुड़े थे RUVAB कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिनेरियो क्या आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन आती है हमारे पास, ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस कंडीशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी, इसको रिकॉग्नाइज करेगा हमारा जो आपका RUVC है, जिसका फंक्शन क्या है, रिजोल्यूशन करना। देखिए रिजोल्यूशन जो है वो काफी सिंपल है एक्चुअली। रेजोल्यूशन करने में यहाँ पे मदद सिंपल आपके 2 RUVC जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, और वो कट लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। कट लगाने का काम जो है आपके RUVC का होगा। और कट जो है वो ऐसे ही नहीं लगाया जाता। RUVC जो है वो यूज करता है क्लीवेज साइट्स का। किनका यूज करा है, क्लीवेज साइट्स का। तो क्लीवेज साइट्स क्या होती हैं भैया, भाई ऑब्वियसली ये ऐसे DNA के सीक्वेंसेस हैं जहां पे कट लगाया जा सकता है RUVC के द्वारा। तो कौन सी है वो साइट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो आपके पास ये जो है एक साइट है। तो इस साइट के ऊपर फॉर एग्जांपल जो आपका यहाँ पे दूसरा T है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये है आपकी क्लीवेज साइट। तो यहाँ के ऊपर क्लीवेज साइट ऑफ RUVC, और ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि ये ई कोलाई की है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि RUVC जो है वो ई कोलाई के अंदर ही होता है। तो इसलिए मैंने ये लिखना मैंने जरूरी नहीं समझा। ऑब्वियसली दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो है रेजोल्यूशन हो जाएगी। अब कट जो है वो 2 तरीके से लगाया जा सकता है।
ठीक है, क्लीवेज जो है वो दो तरीके से की जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते होंगे। एक सिनेरियो तो ये है कि आप यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा दें, ठीक है, दूसरा सिनेरियो है यहाँ पे और यहाँ पे कट लगा दें। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, लेकिन मान लीजिए कि ये सिनेरियो है, कट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ब्लू कलर वाले जब कट लगेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बनेगा, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको हम स्प्लाइस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या स्प्लाइस प्रोडक्ट। दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं कि कट जो है यहां पे लगेगा। अब देखिए ऑब्वियसली अगर कट आपको रेड टिक्स पे लगाना है तो RUVC की जो आपकी कंफर्मेशन है वो आपको ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी, मतलब जो बाइंडिंग है RUVC डाइमर की वो अलग तरीके से बाइंडिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास रेड साइड्स पे कट लगता है तो आपके पास जो है नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट जो है देखने को आपको मिलेगा। नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट को मैंने आपको बताया था, इसको हम पैच भी बोलते हैं या पैच प्रोडक्ट भी इनको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है आपकी कंडीशंस होती हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की, कि कैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यूज होता है मियोसिस में भी और आपका यू कैन से डबल स्ट्रैंडेड DNA रिपेयर में भी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे देखिए हम दो सिनेरियो लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं E. coli, ओके, और यहाँ पे हम लेते हैं यूकैरियोट्स। अब मैं कुछ फंक्शंस बताऊंगा जो कि हमें पता है कि कौन सा प्रोटीन जो है यूज किया जाता है। सबसे पहले जो आपका स्ट्रैंड इन्वेजन है और जो यू कैन से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करनी है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ बाइंडिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज हैं, जो आपका स्ट्रैंड इन्वेजन है, ठीक है, इसके साथ साथ बाइंडिंग टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और यू कैन से द 3' ओवरहैंग। ये काम कौन करता है? ई. कोलाई के अंदर हमें पता है ये फंक्शन किसका है, RAC1 का। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास सिचुएशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे RAD51 यूज हो सकता है और DCM1 भी यूज हो सकता है। DCM1 बेसिकली मियोसिस के अंदर हमारा जो है हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ DSPs या फिर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। देखिए ई. कोलाई के अंदर क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर कोई नहीं करता, अपने आप होता है ड्यू टू सम एजेंट्स और समथिंग लाइक दैट। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मियोसिस हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि SPO11, मियोसिस के अंदर आपका SPO11 जो है, क्योंकि मियोसिस के दौरान आपको पता होगा कि क्रॉसिंग ओवर होती है, साइनेप्सिस बनते हैं, तो वहां पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक खुद से लगाए जाते हैं एक प्रोटीन के द्वारा जिसका नाम है SPO11। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि मेटिंग टाइप स्विचिंग होती है, एक अलग तरह की रिकॉम्बिनेशन है जो कि हम आप इस पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो मेटिंग टाइप स्विचेस में हो एंडोन्यूक्लियसेस या फिर HO एंडोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ये काम करते हैं। ट्रांसपोजिशन में भी आपके अलग अलग एंडोन्यूक्लियसेस हैं जो ये कट करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखिए अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमने क्या करी थी, अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट चीज हमने की थी कि जो आपका फॉर एग्जांपल ई. कोलाई के अंदर हमारे पास द RAC-BCD कॉम्प्लेक्स था जो कि अलग अलग फंक्शन कर रहा था। फॉर एग्जांपल जो है डाइजेशन नहीं लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ 3' ओवरहैंग, फॉर्मेशन ऑफ 3' ओवरहैंग, ठीक है, इस चीज को करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ RAC-A, या चलो इतना ही लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द 3' ओवरहैंग। ई. कोलाई के केस में ये काम किया था हमारे RAC-BCD ने, और जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इसके अंदर ये काम जो है आपका MRX कॉम्प्लेक्स करता है। MRX कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे रेड प्रोटीन्स होते हैं, लाइक RAD50, RAD58, RAD60, ओके। इसी के साथ साथ और भी होते हैं जिनका लाइक RAD52, RAD59 जो स्ट्रैंड एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब है। उसके बाद ब्रांच माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास ब्रांच माइग्रेशन। तो ब्रांच माइग्रेशन में मैंने अभी आपको बताया कि RUVAB कॉम्प्लेक्स जो है हम यूज़ करते हैं ई. कोलाई में। इसके लिए हमें पता नहीं है कि यूकैरियोट्स के अंदर इसका कौन है, इसका यू कैन से इसका रोल कौन प्ले करता है। लास्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ द हॉलीडे जंक्शन। हमें पता है कि ई. कोलाई के अंदर दैट इज RUVC,
यहां पे हम यूज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स, अगेन RAD51C एंड XRCC3 कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ कुछ और प्रोटीन भी हैं, जैसे WRN प्रोटीन है, BLM प्रोटीन है। ये सारे प्रोटीन जो है ये सारे क्या करते हैं, रेजोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ताकि पता लग जाए कि अलग अलग कौन से प्रोटीन कहाँ पे यूज होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूजन से बचना यहाँ पे जरूरी है। तो ये इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.